ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس میں میزبان صدر نے کہا کہ دونوں ملک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں، دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے لیے ترکی کے تعاون کے مشکور ہیں، مسئلہ کشمیر پر ترکی کی غیر متزلزل حمایت پر مشکور ہیں، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دونوں ممالک نے توانائی، کان کنی، معدنیات اور IT سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ مشترکہ اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم نے مشترکہ منصوبوں اور دو طرفہ سرمایہ کاری کے ذریعے اقتصادی تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ہر قسم کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ پریس کانفرنس میں میزبان صدر نے کہا دونوں ملک آزاد خود مختاری اور فلسطینی ریاست کی حمایت کرتے ہیں، دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ And Pakistan are among the leading countries that have put forward the strongest will in counter-terrorism. And I would like to take this opportunity to wish Allah's mercy to our brothers who were martyred during the terrorist attacks in Pakistan, and I'd like to wish a speedy recovery to the wounded. We continue to support Pakistan in its fight against all forms of terrorism. I thank you, my dear brother President Erdogan, for Turkey's consistent support to Pakistan in our counter-terrorism efforts. We strongly condemn the brutal killings of over 50,000 innocent Palestinians, including women and children. We have called for an immediate ceasefire and unhindered flow of humanitarian assistance for the Palestinian people. I express my sincerest gratitude to my dear brother President Erdogan for Turkey's unwavering support on the Kashmir issue and reiterated our support to the people of Turkish Republic of Northern Cyprus. اہم خبر آپ کو دیں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 28 سیاح ہلاک جبکہ 12 زخمی ہو گئے۔ بھارتی حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 غیر ملکی سیاح اور بھارتی بحریہ کا 1 افسر بھی شامل ہیں۔ غیر ملکیوں کا تعلق اٹلی اور اسرائیل سے ہے۔ کیرلا ہائی کورٹ کے 3 جج حملے میں محفوظ رہے ہیں، زخمیوں کو مقامی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حملے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کا دورہ مختصر کر کے آج صبح واپس دلی پہنچ گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ پچھلے کئی سالوں میں شہریوں پر سب سے بڑا حملہ ہے۔ میر وائز عمر فاروق اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے سیاحوں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ، روسی صدر پوتن اور بھارت میں موجود امریکی نائب صدر جیری وینس نے بھی پہلگام حملے کی مذمت کی ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف امریکہ بھارت کے ساتھ ہے۔ حریت پسند رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے کہا کہ پہلگام کا واقعہ بالکل سکھوں کا چھٹی سنگھ پورا قتل عام جیسا واقعہ ہے۔ بھارت کے اس فالس فلیگ آپریشن کی مذمت کرتے ہیں اور بھارتی دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ ایک بیان میں مشال ملک کا کہنا تھا کہ بھارت نے سال 2000 میں امریکی صدر بل کلنٹن کے دورے کے موقع پر بھی 35 سکھوں کو قتل کر کے کشمیریوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب بھارت کے دورے پر موجود امریکی نائب صدر جیری وینس کو گودی میڈیا کی جھوٹی خبروں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت کے اس فالس فلیگ آپریشن کا مقصد کشمیر کی تحریک آزادی کو بدنام کرنا ہے۔ سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی نے کہا کہ فالس فلیگ کا ڈرامہ رچانا بھارتی روایت ہے۔ بھارتی میڈیا کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا من گھڑت اور جھوٹا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں جلیل عباس جیلانی نے مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ افراد کے قتل کی مذمت کرتے ہوئے کہا ماضی میں اس طرح کے واقعات کے پیچھے خود بھارتی خفیہ ایجنسیز ملوث رہی ہیں۔ بھارتی پاکستان سمیت کینیڈا اور امریکہ میں بھی ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں ملوث ہیں۔
سب سے پہلے تو میں یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے میں اس کی پرزور طریقے سے اس کی مذمت کروں گا، کیونکہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں یہ اس میں انوسینٹ معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں۔ ہندوستان خود بھی آہستہ آہستہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے۔ کلبھوشن سنگھ یادو جو ایک بھارتی سینئر افسر تھے ان کی نیوی کے، جب ان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ ان کو وہاں سے ہدایات ملتی تھی کہ وہاں پہ دہشت گردی پھیلائی جائے اور وہ جہاں بلوچستان کی جتنی بھی تنظیمات ہیں جو کہ اس دہشت گردی میں ملوث ہیں تو ان کی سپورٹ کرنا۔ کینیڈا میں انہوں نے کچھ اسیسینیشنز کی جس کی وجہ سے کینیڈا اور وہاں پر بھی ایک بہت ہی زیادہ کنسرن پایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے امریکہ کے اندر بھی ہندوستان نے ایک اٹیمپٹ کی وہاں پر بھی کسی کو اسیسینیٹ کرنے کی، جو ڈسیڈنٹس ہیں جو وہاں پہ سکھ کمیونٹی کے، ان کو بھی اسی طریقے سے پاکستان میں بھی، اور ہمارے پاس اس کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ ہندوستان میں کچھ یہاں پر بھی کچھ اسیسینیشنز ہوئیں جس کے اندر ہندوستان ملوث تھا۔ تو یہ اب ان تمام وجوہات کی بنا پہ میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ہندوستان کی اس الزام تراشی پہ کچھ یقین کرے گی۔ اور اب کینالز کے حوالے سے جو معاملہ ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو گرا سکتے ہیں اگر گرانا نہیں چاہتے، ہمیں ایسے فیصلے کی حد تک نہ لے جائیں جس سے سب کو نقصان ہو۔ پروگرام میں آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ہم اپنا اور جمہوریت کا نقصان نہیں چاہتے۔ وفاقی حکومت سوچے کہ وہ جمہوریت کا نقصان کیوں چاہ رہی ہے۔ چولستان منصوبے کی منظوری نگراں دور میں دی گئی۔ وفاقی حکومت کیا چاہتی ہے کہ حکومت گرے اور لمبے عرصے کے لیے نگراں حکومت آ کر مزید متنازع منصوبوں کی منظوری دے؟ وفاق نے اپروچ کیا تھا اور بات آگے بڑھ رہی ہے۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت جلد معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہم بالکل تیار نہیں ہیں اس کے علاوہ مذاکرات کے لیے۔ کہاں سے لائیں گے پانی؟ ایکسپلین کریں نا۔ وہ کہہ رہے جو پانی آلریڈی سمندر میں جا رہے ہیں اس میں سے ہم لیں گے۔ ہم کہہ رہے سمندر میں تو پانی جا ہی نہیں رہا اتنا۔ انفارچونیٹلی ہمیں اس طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ شاید ہمیں یہ کہنا پڑ جائے۔ اس حد تک لے گئے چیز کو کہ پورا سندھ سراپا احتجاج ہے۔ اس لیے انہیں اس پروجیکٹ کو واپس لینا ہوگا، کنسنسس ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اگر کنسنسس ڈیولپ کر سکے، اگر ہمیں کنونس کر سکے تو پھر ہم آگے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طریقے سے تو نہیں ہوگا نا کہ آپ صرف ٹائم گین کریں اور چیزوں کو اور خراب کرتے جائیں۔ میں اس لیول پہ نہیں جانا چاہ رہا کہ جس قسم کی سٹیٹمنٹس انہوں نے کچھ وزراء نے دی ہیں۔ ہمارے پاس انفینٹ کیپیسٹی ہے، ہم اس حکومت کو گرا سکتے ہیں، ہم گرانا نہیں چاہتے۔ چولستان کنال کی جو اپروول تھی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے زمانے میں دی گئی تھی۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ حکومت گرے؟ اگر پچھلے بار 6 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر آئی تھی، ہو سکتا ہے زیادہ آئے اور کچھ اور اپروولز ہو جائیں۔ کیئر ٹیکر کے زمانے میں جب نان ریپرزینٹیو گورنمنٹس ہو تو پھر ہم الیکٹ آ کے پھر ہم لڑ رہے ہو لوگوں کے حقوق کے لیے۔ کوئی ایشو ہے نا کہ ایک پہ نہیں اٹھا رہے 6 مہینے سے، بیکاز they know that the mistake has been made۔ یہ پانی موجود ہی نہیں ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی سندھ کے بھی تو کنال بنا رہے ہیں، کچی کنال اور تھر کنال نہیں چاہیے، نہیں ہے پانی، فوری طور پر ہو اور فیصلہ اس کا میں پری کنڈیشن نہیں ڈالنا چاہتا، بٹ آئی ڈونٹ سی اینی ادر وے۔ اتنا خراب کر دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے اس کیس کو، کسی اور چیز سے سندھ کے عوام راضی نہیں ہوں گے، ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ سندھ کے لوگ صرف ایک چیز پہ راضی ہوں گے کہ اس کنال، چولستان کنال اور سارے کنالز کی سکیمز کو فل فور وڈرا کیا جائے۔ ہمیں اس حد تک نہ لے جائیں کہ ہمیں کوئی ایسا فیصلہ کرنا پڑے جس سے سب کو نقصان ہو۔ ہم اپنا نقصان نہیں چاہتے، ہم جمہوریت کا نقصان نہیں چاہتے، لیکن آپ بھی تو سوچیں کہ آپ جمہوریت کا نقصان کیوں چاہ رہے ہیں۔ قومی شاہراہ پر ببرلو کے مقام پر جاری وکلا برادری سے مذاکرات کرنے بشیر میمن پہنچ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن اور وکلا برادری کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ بشیر میمن وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر مذاکرات کرنے پہنچے ہیں۔ اور اب کراچی کو پانی فراہمی منصوبوں کا ذکر۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت سندھ اس بات کو یقینی بنائے کہ K4 پانی منصوبے کی تکمیل کے بعد ٹینکر مافیا کا مکمل خاتمہ ہو اور پانی براہ راست شہریوں کے گھروں تک پہنچے۔
वज़ीर मनसूबा बंदी की ज़ेर सदारत कराची वाटर सप्लाई की निगरानी के लिए कायम कमेटी का पहला इजलास भी हुआ। वफाकी वजीर ने कहा कराची के वाटर प्रोजेक्ट्स फाल, मरबूत और हम आहंग होने चाहिए ताकि वफाकी हुकूमत इनकी ज़रूरियात के मुताबिक फंड्स जारी कर सके। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी की ज़ेर सदारत कराची वाटर सप्लाई की निगरानी के लिए कायम कमेटी का पहला इजलास हुआ। वजारत मनसूबाबंदी के एलामिये के मुताबिक वजीर मनसूबाबंदी ने कहा कराची के 3 मनसूबे करली बगार फीडर केनाल K4 और कराची वाटर एंड सीवरेज सर्विसेज में बेहतरी का मनसूबा अहम तरीन मनसूबे में है। उन्होंने कहा कि किसी भी मनसूबे में ताख़ीर से फंड ज़ाया हो सकते हैं। मनसूबा वक्त पर मुकम्मल होना ज़रूरी है। तीनों मनसूबों के डायरेक्टर्स मुकम्मल टाइम लाइन फराहम करें ताकि बजट असल पेशरफ्त के मुताबिक जारी हो सके। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर्स अपनी जिम्मेदारियाँ वाज़ेह करें और जामे मनसूबा फौरी जमा कराएँ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह और वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए इत्तफाक किया कि नहरों के मामले पर सड़कें ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। इस तरह करने से मुल्क और आवाम का बेहद नुकसान हो रहा है। हमारे दोस्त हैं, उनमें JJI के दोस्त भी आज शामिल हुए हैं। वो जो धरना दिए बैठे हैं वो तो देखें, उन्होंने पंजाब से आने वाली ट्रैफिक जो है वो उसको रोका हुआ है। बेपनाह मुश्किलात हैं लोगों को वहाँ पे जो है वो कुर्बानी के जानवरों का आपके इल्म में है कि आजकल जो है वो यानी सीज़न है, वो वहाँ पे जो है वो जानवर जो है वो वहाँ पे मर रहे हैं और लोग वहाँ पे जो है वो इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। तो उस सिलसिले में उनसे गुजारिश की है, उनसे बात हुई है कि भाई आप इस सिलसिले में बात करें, लेकिन ये काम जो आप कर रहे हैं आम आदमी के लिए जो है वो आप मुश्किलात पैदा करें। आप भी इनके साथ मिलकर ये अपील करेंगे कि एहतजाज ज़रूर करें लेकिन सड़कें बंद ना करें। एहतजाज करना सबका हक है, सड़कें ब्लॉक ना करें क्योंकि सड़कों के ब्लॉक होने से लोगों को, आम पब्लिक को परेशानी हो रही है और पूरा वो निज़ाम जो है वो सब चौक है। तो हमने यही उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप रोड ब्लॉक ना करें। पंजाब के मुख्तलिफ अजला जबकि सिंध के ज़िला नौशहर फिरोज में गंदम की तैयार फसल में आग लगने के वाक़यात पेश आए हैं। किसानों को लाखों रुपए मालियत का नुकसान हो चुका। मामला क्या है, जानते हैं। गंदम की तैयार फसल में आग लगने के सबसे ज्यादा वाकयात लोधरा में हुए, जहां सिर्फ 2 हफ्तों के दौरान गंदम की फसल को आग लगने के 30 वाकयात पेश आए। हाफिजाबाद में दर्जन भर के करीब हादसात हुए। सरगोदा, खुशाब, बहावलपुर और डीजी खान समेत सिंध के जिला नौशहर फिरोज में भी 2 वाकयात पेश आए जिसमें किसानों को लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक गंदम को आग लगने की आम वजह गंदम की बाकियात को जलाना है, जिससे साथ खड़ी फसल को आग लग जाती है। बाज़ औक़ात गंदम की फसल के साथ गुजरते अफराद जलती सिगरेट खेतों में फेंक देते हैं, इससे भी आग लग जाती है। शकरगढ़ में बारातियों की जानिब से की जाने वाली आतिशबाजी से गंदम के खेत में आग लगी। माहिरीन के मुताबिक गंदम की बाकियात जलाने पर दफा 144 के तहत पाबंदी से गंदम की फसल को आग लगने से मुमकिना हद तक बचाया जा सकता है। लाहौर में किताब दोस्ती में जुड़े दोस्तों ने किताब घर के नाम से लाइब्रेरी कायम कर ली है। कहते हैं कुतुब शख्सियत निखारती और जहन खोलती हैं। डिजिटल दौर में भी किताब की अहमियत बरकरार है। किताबों के आलमी दिन पर देखते हैं अशरफ ननकानवी की ये रिपोर्ट। लाहौर में इल्म के जज्बे से सरशार लाइब्रेरी कायम करने वाले दोस्तों का कहना है कि इनकी लाइब्रेरी से हर खास व आम अपने ज़ौक़ की तस्कीन कर सकता है। हमारे दोस्तों का मकसद यही था बनाने का लाइब्रेरी की तालीम हासिल करके अवाम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करके अच्छे शहरी बनने का अपने अंदर अज़म पैदा करें। किताबघर लाइब्रेरी में अदब, तारीख़, फ़लसफ़ा और दीगर मौज़ूआत पर 2000 से ज़्यादा किताबें मौजूद हैं जिनसे तलबा और तालिबात और दीगर अफराद इस्तिफ़ादा करते हैं। इस लाइब्रेरी में मुख्तलिफ मज़ामीन उधर से भी हम नॉलेज हासिल कर सकते हैं। वाइड कलेक्शन है किताबों की और मैं उनमें से किसी भी किताब को पकड़ता हूँ और किताब से हिज़ उठाता हूँ। किताबों के बाद शायकीन का मानना है कि डिजिटल दौर में भी किताबों की अहमियत कम नहीं हुई। किताबों का मुतालिया इन्हें नई दुनिया में ले जाता है। किताब में आपको एक चीज़ मिलेगी, जैसे जैसे आप किताब के सफ़े आगे करते जाएंगे
हर एक सफ़े में आपको एक तनकीदी सोच, एक अलग मुजाहरा करने की सलाहियतें पैदा होंगी। हमें न्यू जनरेशन को चैट जीपीटी या सोशल मीडिया के साथ साथ बुक्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए, उनमें एक शौक़ पैदा करना चाहिए कि उनका रुझान बुक्स की तरफ बढ़े। इल्म दोस्त हजरात आज भी किताबों को बेहतरीन साथी करार देते हैं। वो समझते हैं कि इनकी कामयाबी में मुतालिया का किरदार बहुत अहम है। अच्छी किताबें सिर्फ इल्म नहीं देती, तरबियत भी करती हैं। एक किताब की बदौलत सोचने की सलाहियत और ज़बान की महारत भी निखर सकती है। अशरफ ननकानवी, जियो न्यूज़, लाहौर। नसीराबाद के डिविजनल हेडक्वार्टर डेरा मुराद जमाली में सीवरेज के नाकिस निज़ाम के बायस शहरियों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच। नसीराबाद डिवीज़न के हेडक्वार्टर डेरा मुराद जमाली म्यूनसिपल कमेटी की ज़िम्मेदारों की अदम तवज्जी के बायस सीवरेज सिस्टम की नाकिस मनसूबाबंदी की वजह से शहरियों की जो है ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है और जगह जगह गंदगी के ढेर के बायस इलाके में ताफन फैलने के साथ साथ शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है और नालियाँ जो है कचरे से भर गई हैं, जिससे सीवरेज का गंदा पानी अहम सड़कों और गलियों में जमा होने से न सिर्फ शहरियों का पैदल चलना मुश्किल हो चुका है बल्कि खतरनाक मच्छरों की अफजाइश में भी तेजी आ रही है। स्वात के शहर मैंगोरा में सिखों के शमशान घाट का इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि पुराने गुरुद्वारे की तज़ीन और आराइश का काम भी मुकम्मल हो गया। महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। जबकि वादी स्वात जहाँ अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी वो हम आहंगी से रिहाइश पजीर है। आज स्वात में न सिर्फ सिखों के लिए शमशान घाट का इफ्तिताह कर दिया गया है बल्कि यहाँ पर मिंगोरा सिटी में जो गुरुद्वारे का काम है उसकी रिनोवेशन का काम भी मुकम्मल कर लिया गया है। आज इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी वज़ीर-ए-ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद है। वज़ीर-ए-ज़ादा साहब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के अक़लियतों के लिए फोकल पर्सन भी है। उनके तासुरात क्या है, मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। आज ये शमशान घाट और फिर ये गुरुद्वारा के रिनोवेशन के काम का इफ्तिताह हमने कर दिए हैं। ये 2 करोड़ के ज़्यादा फंड से कम्युनिटी वालों ने खुद ही एक गुरुद्वारा बना लिया। इसमें 60 लाख की कंट्रीब्यूशन हमारी सूबाई गवर्नमेंट की है। बड़ा खूबसूरत गुरुद्वारा इन्होंने बना लिए हैं। बहुत खुशी होती है इसका विज़िट करके। यहाँ पे लोग बड़े प्यार मोहब्बत से खुशी से रह रहे हैं। तो इंशाअल्लाह स्वात कम्युनिटी के जो कम्युनिटी हॉल के इशू है 1.5 करोड़ रुपए पहले से उसके लिए मंजूर है और मज़ीद भी अभी इनके साथ मुशावरत में जो फंड दरकार होंगे सूबाई हुकूमत देगी। बहुत शुक्रिया आपका वज़ीर-ए-ज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अगर हम सिख कम्युनिटी की बात करें तो इस वक्त ज़िला स्वात में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबन 160 से ज़्यादा फैमिलीज़ जो है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर है, जो कि आज़ादाना तौर पर अपने मज़हब का बाकायदा प्रचार भी करते हैं और यहाँ पे अपना प्रैक्टिस भी करते हैं। उच्च शरीफ में 631 मिलियन रुपए के तरक्याती मंसूबे के तहत तारीखी मसाजिद और सूफिया कराम के मज़ारात की तज़ीन और आराइश का काम जारी है। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मुसर्रद जबी मंसूबे की खुद निगरानी कर रहे हैं। अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी मैं उस वक्त बरसगीर पाक व हिंद के तारीखी शहर उच्च शरीफ में यूनेस्को की तरफ से डिक्लेयर्ड मोनूमेंट बीबी जवंदी के मकबरे के पास मौजूद हूँ। आजकल उच्च शरीफ के तारीखी मसाजिद और मज़ारात की तामीर व मुरम्मत और तज़ीन व आराइश के मंसूबे पर काम जारी है। इस सिलसिले में कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न मुसर्रद जबी इस मंसूबे की खुद निगरानी कर रही हैं। उन्होंने उच्च शरीफ के दौरे के दौरान बताया कि उच्च शरीफ में आजकल तज़ीन व आराइश के मंसूबे पर 631 मिलियन रुपए का काम जारी है, जिसमें तारीखी मसाजिद की तज़ीन व आराइश, उसके साथ साथ सूफिया कराम हज़रत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, हज़रत मखदूम जहानिया जहाँ गश्त की मज़ारात की तामीर व तरक्की और तज़ीन व आराइश का काम जारी है। इस मंसूबे में ख़ास तौर पर इस बात को मद्देनज़र रखा जा रहा है कि मंसूबे की तामीर व तरक्की और तज़ीन व आराइश का म्यार जो है वो सदियों पुराने म्यार की मुताबिकत रखता हो। नवाबशाह की पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी बराए ख़वातीन के कॉन्वोकेशन का अहवाल जानिए मोहम्मद अनवर शेख से। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंसेज में 7वां कॉन्वोकेशन मुनक़िद हुआ, जिसमें 337 तालबात को यहाँ MBBS की डिग्री दी गई। इसके अलावा 6 गोल्ड मेडल
5 सिल्वर मेडल भी दिए गए। इस सिलसिले में तालबात का ये कहना था कि आज वो ग्रेजुएट बनी है और इनका अज़्म यह है कि वो यहाँ से डॉक्टर बनने के बाद इंसानियत की खिदमत करेंगी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि ये कॉन्वोकेशन के मौके पे वालिदैन ने भी शिरकत की है और आज उनकी उम्मीदें भर लाई है। आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर इस वक्त जो तालबात शरीक हुई हैं जिन्होंने MBBS फाइनल किया है वो बहुत खुश हैं और उनका ये कहना है कि आज इनके लिए ये ईद का दिन है। जी। जिला चारसदा की तहसील शबकदर में मुनशियात और दीगर जराइम की रोकथाम के लिए मकामी लोगों ने अवामी कमेटी तश्कील दी है जो पुलिस और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करेगी। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इरफानुल्लाह जान। जी, शबकदर में मनशियात फरोशी और अमन अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ हलीमजे कौम का कौमी जरगा में इस वक्त मौजूद हूँ जिला चारसदा की तहसील शबकदर के इलाका हलीमजे के एक मस्जिद में, जहाँ अमन अमान की खराब सूरत हाल और मनशियात फरोशी के खिलाफ मुकामी लोगों का कौमी सतह पर जरगा जारी है, जिसमें अमायदीन इलाका समेत उलमाए किराम और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र के लोग शामिल है। जरगा के हवाले से शरीक लोगों का क्या कहना है, हम उनसे पूछते हैं। हमारे इलाकों में हेरोइन के बाद ऐसी चीजें आई हैं जो हमारी नस्ल को तबाह कर रही है, जिसमें आइस और इस तरह कोकीन वगैरह जो पहले इधर नहीं हुआ करते। ये पुल का किरदार अदा करेगा, ये कौम के दरमियान, और जाहिर है पुलिस और या जो इंतजामिया है ये मसाइल बगैर उसके तो हल हो ही नहीं सकते। न ये जरगा खुद बखुद ये ख़त्म कर सकता है क्योंकि हम एक सेटल एरिया में रहते हैं। जरगा में मुताबिका तौर पर 25 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई जो इलाके में मनशियात फरोशी और दीगर संगीन बुराइयों के खात्मे के लिए काम करेगी।